Hello students, in the previous video we have seen the introduction of artificial intelligence, relation of artificial intelligence in our own lives, purpose of artificial intelligence, as well as the possibilities of artificial intelligence in our various fields. Okay, now in this video we are going to discuss the artificial intelligence ethics. What I mean to say, does artificial intelligence is good for us or does it bad for us? Okay, so artificial intelligence जो है उसको वो हमारे लिए कितना गुड है और हमारे लिए कितना बैड है उसको हम डिस्कशन और डिबेट के जरिए जो है ज़्यादा समझ सकते हैं. ओके, तो सो दिस वीडियो इज मेड for the students to understand the AI ethics or artificial intelligence ethics by using the techniques of debate and discussion. Okay, so let's start this video. Okay, so AI ethics. In this video, in this particular lecture, आपका मेन ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो को पढ़ने का और सीखने का कि after studying this video you have to gain an awareness of the ethical concerns about AI. Okay, आपको artificial intelligence की ethical knowledge होनी चाहिए कि artificial intelligence को अगर हम किसी फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं तो वो artificial intelligence हमारे लिए कितना beneficial है. Okay, and the next thing is उसकी cost और उसके benefits को भी हम समझ सकें कि कितनी कॉस्ट आएगी, क्या दूसरे टेक्नोलॉजीज़ के कंपैरिजन में उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, ओके, या दूसरे टेक्नोलॉजीज़ के कंपैरिजन में उसके बेनिफिट्स जो हैं कम है या ज़्यादा है, इसके बारे में भी हमें जानना ज़रूरी है बिफोर अप्लाइंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन आवर लाइफ. ओके, सो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो. ओके, सो ethical concerns of AI with respect to inclusion, bias and privacy. ओके, सो ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि प्राइवेसी में, बायस में और इंक्लूजन में, ऑल इन थ्री एरियाज, नॉट थ्री एरियाज इन आवर लाइफ्स जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना इफेक्टिव है, कितना इम्पैक्ट करता है. ओके, एंड डेफिनेटली कॉस्ट एंड बेनिफिट्स तो हम स्टडी करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एथिकल पार्ट. लेट्स प्ले दिस वीडियो. There has been a kind of sea change in AI over the last 5 years. Before that, had you asked seriously whether or not we should be crafting a code of ethics for artificial intelligence? As we've seen AI begin to be applied in real applications in Facebook and in self-driving cars. Now is the time to be talking about these issues. And we are the people who will be deciding what society looks like for our children in an AI and roboticized world. Over time, software is going to be written by software. AI is going to create the AI. So let's get a code of ethics that really prioritizes ethical considerations at the beginning of design. And that will help both the creators of the technology and then certainly the users, because there's a better sense of value alignment for the technology and the people using it. There is no one universal set of ethical principles, so it will be already very important to try to identify the right values to be used in a particular scenario. And then once you have identified them, of course, you need to understand how to model them and how to embed them inside the AI system that you want to develop and deploy. When it comes to a split-second decision that will potentially involve a necessary injury or death, and there are trades, what will an automatic car do? This brings to the fore this notion of ethical models in our systems, and whose ethics are they? We create these technologies, and we need to choose how we want to use them, or otherwise we will be used by them. This idea of ethics is really this glorious opportunity that we have as humans right now today for deep introspection. The awareness and the intent by creators of this technology is to not be blind, to not ignore those negative possibilities.
but to understand them up front, make the world aware of them, and do what we can to mitigate their impacts. How do we represent our values in these systems such that the systems are aligned with us? They would make the same decisions we might make had we had a long time to think about it. The power of these AI systems is going to be that they do infer a lot, that they will know us better than we know ourselves. We'll be tracked in a lot of different ways with some kind of underlying goal. Is that goal to sell us products? Is that goal to make us more educated, to make us more civil, more open-minded? It's potentially an indoctrination machine. And how that's governed, who runs that, is that going to be strictly for commercial purposes? That's, I think, one of the key questions. This is too powerful just to sell lawn chairs to people. This changes the way you look at the world. So it would be good if it were taken that seriously, I think. How will machines know what we value if we don't know ourselves? So after seeing this video, you have gained some idea about the ethical concerns related to artificial intelligence. Okay, so artificial intelligence is proposed, or it is made for our life to be simpler compared to the earlier days. Okay, so how it will affect the or how it will impact our life, that you have clearly seen in this video. Okay, now there are 4 pillars, mainly 4 pillars हैं artificial intelligence में. अगर हम ethics की बात करें, first one is the explainable and interpretable. Okay, first one is explainable and interpretable. Artificial intelligence जो है वो easily explain किया जा सके और interpret किया जा सके. Okay, इसमें main आपको ध्यान रखना है कि ability to explain the workings in language people can understand. Okay, जो भी artificial intelligence में हम research कर रहे हैं या जो भी development हो रहा है उसको ह्यूमन बीइंग और जो पीपल्स हैं वो इजीली अंडरस्टैंड कर सके, ये हमारा फर्स्ट कंसर्न है. ओके, एंड एबिलिटी टू सी हाउ रिजल्ट्स कैन वेरी विथ चेंजिंग इनपुट्स. ओके, अगर हम इनपुट में चेंज करते हैं तो आउटपुट में क्या चेंज होता है. ओके, नाउ द सेकंड पिलर इज ट्रांसपेरेंट. सेकंड पिलर इज ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंट में इट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मस्ट बी क्लियर, consistent and understandable in its working. ओके, ट्रांसपेरेंसी हमें हर जगह चाहिए. तो ट्रांसपेरेंसी में क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए. नेक्स्ट पिलर है ऑडिटेबल. ऑडिटेबल का मतलब है इट अलाउज थर्ड पार्टीज टू एसेस डेटा इनपुट्स एंड प्रोवाइड एश्योरेंस द आउटपुट्स कैन बी ट्रस्टेड. सो जो थर्ड पार्टीज हैं वो इजीली डेटा को एक्सेस कर सकें, सबसे पहला चीज. एंड दूसरा जो है वो आउटपुट्स पे जो है ट्रस्ट कर सके. मींस हमने जो डेटा इनपुट्स उनको प्रोवाइड किया है, उस डेटा इनपुट्स को प्रोसेस करने के बाद बाय यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व्हाट विल बी द आउटपुट, और वो आउटपुट कितना ट्रस्टेड है, कितना ऑथेंटिकेटेड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न है यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एथिक्स का. एंड द लास्ट वन इज इट इज फेयर. Last one, it is fair. Fair means eliminates or reduces the impact of bias on certain users. Okay, जो elimination है या जो भी let's say problem है अगर किसी certain users पे, उसका कम से कम जो है affect हो अगर हम artificial intelligence का use कर रहे हैं. Okay, so ये 4 pillars आपको ध्यान रखने हैं before applying artificial intelligence in the society or in real world. Okay, now we have one here balloon debate, balloon debate or you can say balloon discussion. इसमें mainly the idea is कि आपको 2 teams बनानी है, 2 teams prepare करनी है. One team will be a formation with the artificial intelligence and one team will be against the artificial intelligence. Or okay, what I mean to say, यहाँ पे हम डिबेट करेंगे
अबाउट द बून एंड बैन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस हैं उसके बून और बैन के बारे में। व्हाट इज बून एंड व्हाट इज बैन? बून मीन्स किसी चीज़ को देख के खुशी होना और बैन मीन्स किसी चीज़ को देख के गुस्सा होना। ओके, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो एप्लीकेशंस है हमारे रियल लाइफ में, उसको देखने के बाद आपको क्या फील होता है? आपको उसे देख के हैप्पी होते हो या फिर आप एंग्जियस होते हो उसको देख के? ओके, सो बोथ साइड हमें जो है कंसिडर करना पड़ेगा, नॉट वी आर ओनली कि हम सिर्फ इसके बेनिफिट को ही कंसिडर कर रहे हैं, हम इसके जो है डिसएडवांटेजेस और इसके कॉन्स को भी जो है हम कंसिडर करेंगे। ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, 2 टीम्स, यू हैव टू प्रिपेयर 2 टीम्स। आप 2 टीम प्रिपेयर कर सकते हैं अपने क्लास के अंदर, डिवाइड कर लें हाफ के पोर्शन में, एंड देन 1 टीम आउट ऑफ दिस 2 विल बी इन अफर्मेशन विद एआई एप्लीकेशन। एक टीम जो है एआई एप्लीकेशन के सपोर्ट में होगी, मीन्स एआई एप्लीकेशंस के बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस करेगी, एंड अदर विल बी अगेंस्ट एआई एप्लीकेशंस। ओके, सो 2 टीम है, दोनों को हाफ डिवाइड कर लीजिए आप, और एक टीम एआई के सपोर्ट में बात करेगी और एक टीम एआई के अगेंस्ट में बात करेगी। ओके, द डिबेट विल गो थीम बाय थीम वेयर इन ईच मेंबर ऑफ द टीम विल गेट अ मिनट टू स्पीक। ओके, और टीम में जितने भी मेंबर्स हैं, हर टीम मेंबर को 1 मिनट का जो है टाइम मिलेगा अपनी बात रखने के लिए। अगर और सबसे पहले कौन स्टार्ट करेगा? सबसे पहले स्टार्ट करेगा जो एआई के फेवर में है, जो एआई के सपोर्ट में है। लेट्स से आपने 2 टीम्स प्रिपेयर की, 2 टीम्स में से जो एआई के फेवर में है वो टीम में से कोई एक जो है स्टूडेंट वो स्टैंड करेगा और वो अपने पॉइंट्स को जो है रखेगा सबके सामने। देन उसके बाद नेक्स्ट टर्न आएगा जो एआई के अगेंस्ट में, उसमें से भी एक स्टूडेंट स्टैंड करेगा और वो उसके अगेंस्ट में बात करेगा। इस तरह से हम ये डिबेट जो है करवा सकते हैं। देन after that each speaker will get a minute to speak, and finally one team will be chosen to be thrown out of the balloon debate depending upon the how convincing their points were. Okay, so similarly हर एक मेंबर को इंडिविजुअली जो है टीम बाय टीम जो है चांस मिलेगा, और फाइनली जिस भी टीम के पॉइंट्स ज़्यादा कन्विंसिंग लगेंगे, अगर लेट्स से फर्स्ट टीम जो है जो कि एआई के सपोर्ट में है उसके पॉइंट्स ज़्यादा कन्विंसिंग है तो उसको विनर डिक्लेयर करेंगे हम, और इफ़ अगर उसके अगेंस्ट वाली दूसरी टीम जो एआई के अगेंस्ट में है उसके पॉइंट्स अगर ज़्यादा कन्विंसिंग है तो उसको हम विनर करेंगे। ओके, सो यही बैलून डिबेट का यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट है कि बैलून डिबेट मीन्स बैलून से कौन थ्रो आउट होगा। क्या फर्स्ट टीम थ्रो आउट होगी जो कि एआई के सपोर्ट में है, या सेकेंड टीम थ्रो आउट होगी जो कि एआई के अगेंस्ट में है। ओके, एंड ईच मेंबर विल गेट अ चांस टू स्पीक and they will speak exactly 1 minute. ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। The speaker who speak more than a minute will get his team disqualified. यहाँ पे सबसे important thing है, अगर कोई भी स्पीकर 1 मिनट से ज़्यादा स्पीक करता है, चाहे वो किसी भी टीम का हो, फेवर टीम का हो या अगेंस्ट टीम का हो, वो टीम जो है डिस्क्वालीफाइड हो जाएगी। ओके, सो ये डिबेट आप जो है अपनी क्लास में कर सकते हैं डेफिनेटली, और इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डीप में समझने का जो है एक चांस मिलेगा। ओके, तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कितने अच्छे से समझते हैं ये आपके डिबेट पे भी डिपेंड करता है, नॉट दिस एआई एथिक्स। आप किसी भी पर्टिकुलर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, चाहे आप एप्लीकेशन की बात कर रहे हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पॉसिबिलिटीज़ की बात कर रहे हो, हर जगह जो है आप इस तरह के डिबेट को जो है ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और इसका आपको डेफिनेटली बेनिफिट जो है मिलेगा। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट। सो हियर आई हैव गिवन यू वन क्वेश्चन, हु शुड बी थ्रोन आउट ऑफ द हॉट एयर बैलून। सो द आइडिया हियर इज, हमारे पास हॉट एयर बैलून है। ओके, और ये हॉट एयर बैलून में 2 फैमिलीज जो हैं वो एयर जो है वो एक तरीके से फ्लाई कर रही हैं। Now the main concern here is, I will give you the idea about this hot air balloon. Imagine there are 2 families of 4 people out for a ride in a hot air balloon. Okay, 2 families हैं और 2 families में 4 people हैं और वो राइड कर रहे हैं hot air balloon. Now suddenly the balloon starts move towards the
अर्थ इंस्टेड ऑफ स्टेइंग एयरबॉर्न, और सडनली क्या होता है कि एज्यूम कर सकते हैं कि एयर बैलून का जो वेट है वो ज़्यादा होने लगता है और वो अर्थ की तरफ नीचे आने लगता है. ओके, उसको ऊपर एयरबॉर्न स्टे में होना चाहिए लेकिन वो नीचे आने लगता है. नाउ यहाँ पे अब क्या करेंगे, जब एयर बैलून अगर नीचे आ रहा है तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए किसी एक फैमिली को जो है पैराशूट लेके उस बैलून से बाहर जाना होगा. ओके, टू स्टेबलाइज इट वन फैमिली नीड्स टू टेक द पैराशूट एंड गो आउट ऑफ द बैलून और एल्स इट विल कम क्रैशिंग डाउन. अगर कोई भी एक फैमिली पैराशूट लेके बैलून से बाहर नहीं जाती है तो इन केस क्या होगा, बैलून क्रैश कर जाएगा नीचे. ओके, सो बैलून को क्रैश करने से बचाने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए एक फैमिली को जो है यहाँ पे थ्रो करना पड़ेगा. सो आप किस फैमिली को जो है यहाँ पे थ्रो करने के लिए बनेगी. तो यहाँ पे आप अगर रिलेट करेंगे, जो प्रीवियस स्लाइड थी सेम कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे यूज किया है हॉट एयर बैलून का. हॉट एयर बैलून में 2 फैमिलीज का मतलब है कि एक फैमिली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फेवर में है और दूसरी फैमिली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अगेंस्ट में. ओके, विच वन विल गेट आउट ऑफ द हॉट एयर बैलून, ये डिपेंड करता है कि डिस्कशन में और डिबेट में किस फैमिली ने सब अपने जो पॉइंट्स को है कन्विंस किया है दूसरे फैमिली के सामने. ओके, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आप इस तरह से इसको रिलेट कर सकते हो कि फेवर वाले ने ज़्यादा पॉइंट्स को अपने पॉइंट्स को रखा है या अगेंस्ट वाले ने अपने पॉइंट्स को ज़्यादा रखा है, किसकी पॉइंट्स जो है ज़्यादा कन्विंसिंग. दैट्स हाउ दिस आइडिया विल वर्क. ओके, now the main thing is whenever you apply the artificial intelligence in real world problems, you have to be first understand the consequences of the artificial intelligence which you have applied. Okay, so before applying the artificial intelligence to the real world problem, आपको ये सोचना होगा कि अप्लाई करने के बाद इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं. क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है बेनिफिशियल हो सकते हैं या फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो एक तरीके से डिसएडवांटेजेबल हो सकते हैं, हमारे फेवर में नहीं हो सकते, अगेंस्ट में हो सकते हैं. ओके, सो यू हैव टू बी थिंक आउट ऑफ दिस कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अप्लाई कर रहे हैं तो उसके बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं या उसके हमें जो बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिल रहे हैं, वो हमारे लिए उल्टा जो है डिसबेनिफिट का काम कर रहा है. ओके, सो दैट इज द मेन कंसर्न यू हैव टू बी थिंक of. Okay, so that's all about the artificial intelligence ethics part, and now we have completed the first part of the artificial intelligence, that is the first curriculum of this syllabus. Now in the next video we are going to start the next phase of the artificial intelligence curriculum. Okay, thank you.